Anybody would like to say anything? Ria would like to say anything? I think we create our own situations and own thoughts and own life. Like we actually trying to blame it on God and other external factors, but we ourselves are responsible for what is right and what is wrong in our life. Okay, great. So basically, you are doing everything. You are creating every moment. Whenever you are, even if you are silent, so your energy, your thoughts, your moods, your feelings, your vibration, every minute you are creating, because God has gifted us all the powers. Like God is creating this world, this universe, everything. So we are so powerful. Like we are walking, talking God. And we assume ourselves very small person कि मैं तो कुछ भी करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. We live like this, but actually बहुत फर्क पड़ता है. The way you are thinking, you are speaking, you are conducting yourself, which thoughts you are giving energy to. So today's topic is all about that. So like Vivekananda said that stand up, be bold, be strong, take the whole responsibility on your shoulders, and know that you are the creator of your destiny. All the strength and succor you want is within yourself, therefore, make your own future. So, Vivekananda said it first time, and there are so many people who quoted to this that you are the creator of your life, you are the creator of your destiny. So basically, at times people think that okay, कोई divine forces हैं, कोई karmic होगा, कुछ ऐसा होगा, right? So there are so many factors कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जो भी मेरी life में हो रहा है. Definitely there are past karmas, definitely there are so many other factors also involved, but we can't deny our hand in particular thing. If something is happening with me, if something is happening with me repeatedly again and again, if something is happening in my periphery, there might be with my thought, with my action, with my feeling, with my vibrations, with my emotions, energy, whatever the things I'm giving energy to, wherever I'm putting my focus, I'm attracting all of those things. Or there is something I need to take action, or there is something I need to introspect that why this is happening with me, why this is not happening with Ria or Shabana or Neelamji or Sarita or anybody else. Maybe few things are happening with you guys, but we normally blame other people or circumstances or other factors, maybe divine, maybe some other forces are at play. Definitely, they can be at play, and there might be some situation which is not in your control. But you still have the choice to choose, and you still have the choice to take action. And it should not be like years and years and years you are just struggling with the same thing, and the same thing is keep happening repeatedly. So divine is sending you some message to really look at it and either shift yourself, shift your thoughts, shift your energy, shift your actions, do something about it, or look at a particular thing in a particular way, or accept it, need not to fight for that. So we often associate creation with external forces and divine entities, but this perspective suggests that each one of us hold within us the power to shape our reality or destiny. So now we are talking about creation. So we will understand how we are so interconnected with this universe. We will understand that everybody has that divine spark. हम बोलते तो हैं कि सब में परमात्मा है, सब में भगवान होता है, लेकिन are we living our life like that? कितने लोग जब किसी को हाय, हेलो या नमस्ते बोलते हैं, या आप अपने ऑफिस जाते हो, you say good morning, hi, how are you? Do you feel like that I am talking to divine sitting in him or her? No, we are judging, like we are judging from our
angles, our views, and we are judging that person from our filters, our listening, the perception we have made about him or her. Maybe the person is very nice for other people, but maybe मेरे साथ उसका mood अच्छा नहीं था या उसका थोड़ा सा time अच्छा नहीं था, he behaved in a certain way. So I made this perception and I'm listening to that person from this filter. So are we really, whenever we are meeting people, whenever we are going to places, are we in really presence of divine within us and divine with others? So if you are in presence of divine sitting in other people's heart or the living beings like animals or plants, and if you are really in presence of divine sitting in your heart, so see, if you are relating to all the people and the whole universe like that, what would be your space and how you might be creating in that moment. But normally our all the energy, space, our thoughts, everything filled up with noise or the perception or the thoughts or what others say or what I think about. Yeah. So there is a lot of pollution in that. So my this small initiative to present that who you are actually, and the concept of co-creation with universe. So universe can't create. Universe might be sending all the opportunities to you. Universe might be sending आपके पास वो प्लेट में लाके दे रहा है, लेकिन आपका परसेप्शन है, हो सकता है कि कोई इंसान किसी शेप में आए, किसी फॉर्म में आए, आपको पसंद ही नहीं है किसी की वैसी शक्ल, और आप उस गिफ्ट को वापस कर दें, है ना? सो जब आप खुद अलाइनमेंट में होंगे तब आप उस गिफ्ट को रिसीव कर पाएंगे. बहुत लोगों का होता है कि दे आर बायस्ड विद देयर ओन परसेप्शन एंड फिल्टर्स, और यूनिवर्स इज सेंडिंग or divine is sending help or divine is sending opportunities in different shapes and forms, but we are not in alignment, we can't sense that, and we reject those gifts and opportunity. So there is a requirement of alignment with universe so that we can co-create. So the nitrogen in our DNA, calcium in our teeth, and the iron in our blood, and the carbon in our apple pies. So we all are made in the interiors of collapsing stars. So we are so powerful and we are so connected that the whole universe is made up of the same particles. And the same particles we have in our body, and the same particles, like the 5 elements we say, fire element, earth element, and the water element, and the sky element, right? And what else we have? And the sky element, water, fire, mother earth, and one or element is water, right? So these 5 elements, plus there are different stuff, the chemicals we are made of. Yeah, so everything. So we are made of stardust, and that makes us capable of achieving great things. So we are so powerful, and the whole universe is like the star, Milky Waves, the galaxies, and the sun and the moon. And we see that plants are different from us, sun is different from us, but the same particle. Like we all are part and parcel of divine, but we are in different shapes and form. Maybe as per Gita or as per our Shastras, they say that the same energy is manifesting in different shapes and forms. So we are so powerful, we are so vast, and we are so powerful that we are a part and parcel of this universe. We are a part and parcel of that divine creation. And that divine creation is manifesting here in different shapes and forms. So you are the universe expressing itself as a human for a little while. So we are looking like a body, like this body, like short, tall, or fat, or thin, or whatever the shape and the form we have, the skin color. But who we are actually, we are basically that powerful universal energy, and we are manifesting in a shape of human being right now. And as Sadhguru says, that be it a demon, be it divine, whether you call it a stone or tree, animal,
everything is the same energy. It's manifesting itself in a million of different ways. So if we remind this, if we know our path, so how our creation will be. So far, anything, any question, hope I'm able to create this for all of you, that who we are actually. Right now, our internal dialogue or how we see ourselves in front of situation like we are little small, or I can't do this, I'm not good enough, or I'm helpless, or I'm egoistic, or I'm like this, or people have different things, that I'm stupid, whatever you say to yourself in your head, but who you actually are. Yeah. And definitely our words are creating our worlds. So everything is getting manifested in our head and in our perception. The world can be beautiful. I mean कि जो आपका perception है, आपका state है देखने का, जो आप शब्द बोलते हैं, उससे आपका world create हो रहा है. जैसे I'm sitting in a very beautiful society. There is a lot of greenery and a swimming pool and the kids playing. But if I'm not in good state, I'm in my head. I can't even see the beauty around. I can't see even plants around. I can't see the nature and the kids and the chirping of birds. But when I'm present, when I'm still, when I can sense the air or the fragrance, when I can sense the beauty around, the world is so beautiful for me. And how I am creating my world in that moment. What is my perception of this world? So that is creating the reality. Basically, उदय भान मित्तल जी, अब मेरे परसेप्शन में आप जो हैं वो कुछ हो सकते हैं और आपके परसेप्शन में मैं कुछ हो सकती हूँ, है ना. अब प्रीतम जी के परसेप्शन में पूजा कुछ और हो सकती है, संतोष बंसल जी के परसेप्शन में जो है पूजा कुछ और हो सकती है, शबाना के परसेप्शन में मेरा कुछ और वो हो सकता है. तो बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट. सो ऐसा नहीं है कि एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया अलग है और दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन से दुनिया अलग है, और जो हम बोल रहे हैं हम एवरी मोमेंट वो क्रिएट करते जा रहे हैं. So we are creating every moment, every single second, our words, our thoughts, our feelings, our emotions, our actions, our belief and pattern, and how we are projecting. Like कि हो सकता है सामने वाला इंसान ऐसा नहीं हो, बट 2-4 बार उसने ऐसा किया तो मेरे दिमाग में उसकी वो इमेज बैठ गई है और मैं वैसा ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, या मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से वैसा बिलीफ है, तो मैं फीमेल्स को एक तरीके से देखती हूँ, मेल्स को एक तरीके से देखती हूँ, इंडिया को एक तरीके से देखती हूँ, the world news I am listening. So it's all my projection that I'm seeing the world like that, and in what kind of energy I'm in. It all depends on my state. So if I'm not feeling well, अब मेरा favorite destination for example Switzerland है या Prague है या कहीं भी है, if I'm going there, and if I'm not well, even if the place is so beautiful, so vibrant, and people are happy, I will not enjoy a single second of it, because there is stomach ache or headache. Yeah. And if I am really happy, I am in alignment, maybe मुझे स्विट्जरलैंड भी जाने की इतनी जरूरत नहीं हो, मैं यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा फील करूंगी, और आसपास के मे बी पार्क में भी आई विल फील एस्थेटिक जॉयफुल, राइट. So it's my projection, my energy, whatever been created in past and whatever I perceive my future to be, it's all that. So हम ही क्रिएट कर रहे हैं एवरी मोमेंट पे. सो वी आर क्रिएटिंग आवर वर्ल्ड बाय आवर वर्ड. सो उदय जी, प्रीतम जी, कैन यू प्लीज कम ऑन कैमरा, प्रीतम जी and Santosh ji, I request all the participants to be on camera so that we can create. Thank you so much, Meena ji. So I would like to unmute Usha ji, and what is written here in this presentation, how our word is creating our world. Usha ji, can you please read this for me? Yeah, this is our our words create our world. Yeah. Feeling small and separate or alone,
or I am afraid. या सो ऐसा सभी का एक्सपीरियंस होता है. थैंक यू उषा जी. ऐसा सभी का एक्सपीरियंस होता है किसी न किसी सिचुएशन में. सो व्हेन आई सी माई सेल्फ, कुछ मैं मिस्टेक्स का पुलिंदा हूँ, मुझसे ऐसा हो गया, और आई मेक माई सेल्फ स्मॉल फॉर माई सिली मिस्टेक. सो व्हेन आई एम, और या मेरे पेरेंट्स ने या मेरे जो घर के लोग हैं, ये तो ऐसी है, ये तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलीफ है, लिसनिंग है मेरे बारे में, है ना. तो उसमें हम सुन सुन के, हम बचपन से इतनी बार नो सुनते हैं, टीचर से इतनी बार सुनते हैं कि तुम तो मैथ्स ठीक से नहीं कर सकते, तुम तो डांस ठीक से नहीं कर सकते, तुम तो कोई कुकिंग ठीक से कर ही नहीं सकते, इसके हाथ में तो देना ही नहीं चाहिए. तो how many, maybe thousand and thousands of time we are listening to those no, कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें मतलब यू आर नॉट परफेक्ट, राइट. सो इतनी सारी चीजें होती हैं हमारे एनवायरमेंट में. एंड बीइंग अ गर्ल इन इंडिया और बीइंग अ मेल इन इंडिया इन अ सर्टेन वे, जैसी हमारी सोसाइटी है, जिस तरह की हमारा एनवायरमेंट है, हमारी अपब्रिंगिंग है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं. और हम हैं इतने पावरफुल, यू आर लाइक कृष्णा, यू आर लाइक कि भीम जैसे आप बलशाली हो, लाइक. लेकिन ऑल दिस कन्वर्सेशन, ऑल दिस थिंग्स मेक्स अस फील स्मॉल. कि जैसे हाथी का जो बच्चा होता है उसको चेन से बांध दिया जाता है. अब हाथी बड़ा तो हो गया, इतना ताकतवर तो है, लेकिन अभी भी वो दोस चेन्स आर बाइंडिंग दैट लिटिल एलिफेंट. सो उसी से हम बाहर नहीं हो पा रहे हैं. एंड जब हमारा एक्सपीरियंस होता है इस वर्ल्ड में कि वी आर स्मॉल, सेपरेट, अलोन, अफ्रेड, और वी आर लाइक दिस. अब आपसे 2-4 बार कोई चीज नहीं हो पाई तो आपने उस चीज में हाथ ही डालना बंद कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आपने स्विमिंग सीखना शुरू किया था और आप पहली बार में चोक हो गए किसी वजह से, तो आपकी हिम्मत नहीं हुई करने की. या कुछ लोग होते हैं कि पर्टिकुलर वो कहते हैं मेरे बस की नहीं है, राइट. बट वो थोड़ा सा, जैसे बच्चे होते हैं, वो कितनी बार एक बच्चा चलता है, जब शुरू करता है कितनी बार वो बच्चा गिरता है, उठता है, बट वो स्टॉप नहीं करता ना. बिकॉज चाइल्ड के पास सारी पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते. और हम बड़े लोग 1 से 2 बार ट्राई करते हैं और उसके बाद सोच लेते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. या एक बार किसी से हमने कन्वर्सेशन की, वहां से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम स्टॉप कर देते हैं. बिकॉज अंदर बैठ गई हैं ये सब चीजें. हम डरते हैं पर्टिकुलर लोगों के पास जाने में. बहुत सारे फियर्स आ जाते हैं कि मे बी फियर ऑफ बीइंग यूज्ड, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड और नेग्लेक्टेड, है ना. हमें वो आ जाता है कि कोई हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, या हमें पर्टिकुलर तरीके से बात ना करे, मे बी कोई लाउड नॉइस में या बहुत ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं करे. तो हम चलते हैं कैसे, इतना सारा हम अपने साथ बैगेज लेके चलते हैं कि किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो ही प्रॉब्लम है, या किसी ने हमसे ऐसे बात कर ली. तो if in my opinion I am small, separate, alone and afraid, so what will my experience be? And every time wherever I go for a business meeting or meeting some important people or in my relationship, तो मैं वही create कर रहा हूँ, मैं वहीं से आ रही हूँ, right? कि I am so small, I can't do this, I can't do that. और तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है, बट ये आपने क्रिएट किया है. कोई सिचुएशन हुई और आपने अपने लिए ऐसा बना लिया. So we can always create something else also. Yeah. And Riya ji, can you please read this for me? What's written here? Our words create a world. Happy, blissful, courageous, joyful, successful. So अभी आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है even when you are uttering these words and when you are seeing these pictures of happy I'm people? feeling very nice about it because these pictures are showing the happy part of our life, and it's showing that we can be joyful, we can be happy. It's showing a lot of positivity and optimism. So, obviously, I'm feeling. See, thank you Riya ji. See the simple word. अभी हमने कुछ किया नहीं है, या even if we are looking at those pictures and listening those words, even if फिर आपसे कोई बोले कि आप कैसे हो, या आई एम ऑसम, या आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, जब आप ऐसा बोलते हैं तो क्या क्रिएट हो जाता है सामने वाले के लिए और दूसरे के लिए भी. इन दैट मोमेंट यू क्रिएटेड दैट एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्सन, राइट.
और या फिर आप बोलते हो यार कुछ नहीं, बस कट रही है जिंदगी, चल रही है, समथिंग लाइक दैट. So see the power in your words, in power in your feelings and emotions and experience. So every moment आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, but you can alter that. अभी आपका कितना भी खराब मूड हो, you can make a nice tea or coffee or green tea, whatever you feel like, and you can be in nature, and that will uplift your mood, and maybe you can talk to a good friend. So in seconds के हिसाब से आपकी energy shift होती है. So here is also, this is also our creation. कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, but they are choosing every moment to create happiness, to create strength, to create. So आपने जैसा अपने माइंड को ट्रेन किया है, आप जैसा अपने वर्ड्स से दूसरों को ट्रेन कर रहे हो और खुद को ट्रेन कर रहे हो, वही आपकी लाइफ में उतना उतना मैनिफेस्ट होता है. एंड ये तो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि सारा जो ब्रह्मांड है वो आपके माउथ में है. योर माउथ इज हैविंग लॉट ऑफ पावर. जैसे वो कृष्ण भगवान थे, वो मिट्टी खा रहे थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने माउथ में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया. What is it is projecting like कि आप भी इतने पावरफुल हो कि आपके माउथ में जो आप बोलते हो, अपने आप को बोलते हो और दूसरों को बोलते हो, that is shaping your life every minute. So we must be careful about that कि यदि वो सब हमारी लाइफ को शेप कर रहा है. What's happening? Yeah, so these are the seeds how we are shaping. So आप जब आप कुछ भी बोलते हैं तो वो सीड आप प्लांट कर रहे हैं दूसरे के माइंड में भी और खुद के माइंड में, राइट? एंड आप उस थॉट को, उस वर्ड को एनर्जी दे रहे हैं. अब हम पूरा दिन कितनी नेगेटिव बातें करते हैं. कई लोग गॉसिप करते हैं किसी रिश्तेदार के बारे में या पॉलिटिशियंस के बारे में, या इंडिया में क्या हो रहा है, बारिश इतनी हो रही है. अब बारिश हो रही है तो हो रही है, उस बारिश में कुछ लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहा रहे होंगे, पकौड़े खा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे और पूरे दिन उस बारिश को लेके कोस रहे होंगे, राइट? तो यू आर क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस. अब पूरे दिन आप सोचेंगे कि हमने सुबह 5 से 6 या 6 से 7 एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया, हमने लाफ्टर योगा किया, व्हाटएवर किया, और पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट सिचुएशन, अबाउट पीपल, अबाउट अस, and we expect to have a positive life, right? So seed क्या plant किया, तो भाई seed आपने जो भी plant किया है, result तो वही आने वाला है. And we talk about defeat, है ना? हमें अपने जो किसी टीचर ने बोला, किसी ने बोला, वो सब बहुत याद रहते हैं. हमें कितनी बार प्राइज मिले होंगे, कितनी बार क्लैपिंग मिली होगी, कितनी बार जो हमारी पीठ थपथपाई गई होगी, कितनी बार हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे. क्या वो हमारी प्रेजेंस में, एग्जिस्टेंस में है? टुडे आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं. तो जो भी आपकी विन्स है या जो भी आपकी अचीवमेंट है, जहां भी आपको अच्छा फील हुआ, तो मेक ए नोट ऑफ इट एंड पुट इट इन योर फोन. जब भी आपको ऐसा फील हो तो यू कैन लुक एट इट कि यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो नाइस, यू आर सो वाइब्रेंट, राइट? कि वो चीजें आपको रिमाइंड हो सके. सो हम टॉक करते हैं डिफीट के बारे में, एंड वी एक्सपेक्ट टू हैव विक्ट्री. वी टॉक अबाउट लैक. अब कई लोग बहुत करोड़ों में खेल रहे होंगे, लेकिन भाई मार्केट ऐसा चल रहा है, रिसेशन है, पता ही है, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा. ये अब बार बार, आप जितनी बार, आप 1000 बार ये बोल देंगे तो आपके लिए, आपके दिमाग में तो वो क्रिएट हो ही जाएगा. उसी रिसेशन में, उसी लॉकडाउन में लोगों ने बहुत बहुत पैसा भी कॉस्ट किया है और बहुत नए एवेन्यूज भी ओपन किए हैं, राइट? बट आपकी जो स्टेट थी, यू कॉज लाइक दैट. सो हम लैक की बात करते हैं और अबेंडेंस को चाहते हैं. सो यदि आप एप्पल चाहते हैं तो आपको एप्पल का ही सीड बोना पड़ेगा या प्लांट लगाना पड़ेगा. आप ऑरेंज चाहते हैं तो ऑरेंज ही. अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कैक्टस प्लांट करें तो आपको एप्पल मिलेगा. सो नॉर्मली देखना है हमें पूरे दिन कि हम कितना कैक्टस प्लांट कर रहे हैं और कौन सा सीड प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो भी आप प्लांट कर रहे हैं वो रिपीट हो रही है, और पूरे दिन में वो हजारों बार दूसरों के साथ छोड़ दीजिए, आपके लिए वैसी एनर्जी रिपीट हो रही है. सो बी watchful of your words, whatever you speak, the universe is listening. And what is your intention? Yeah. So basically every time we are manifesting, we should be conscious about
our energy, our thoughts, our emotions and what we are manifesting, ऐसी small चीजें हमें पता भी नहीं है, हम aware भी नहीं है, but the way we stand up, the way we sit, हमारा जो दिमाग में चलता रहता है, एक पीछे से ऑटोमेटिक जो थॉट्स चलते रहते हैं, पूरे दिन लोगों के चलते रहते हैं, किसी चीज को देखा नहीं उसके बारे में रिएक्शन आ जाता है, या सो हमें कुछ भी हो रहा है उस बैकग्राउंड को छोड़ के हमें इंटेंशन क्या रखनी है ना? यदि आपका इंटेंशन होगा कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, लाइवनेस क्रिएट करनी है, और उसको आप थॉट देंगे, उसी एनर्जी को आप ध्यान में रखेंगे, या उधर ही आपके एक्शंस होंगे, थॉट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। और आपके बिलीफ कैसे हैं, तो बिलीफ भी आपको वॉच करने होंगे कि आप बिलीफ क्या है आपका अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, और परसेप्शन क्या है। यदि आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, पहले तो ऑब्जर्व भी करना है, तो फिर हम कुछ शिफ्ट ला सकते हैं कि भाई मैं चाहता तो ये हूं लेकिन मैं क्रिएट ये कर रहा हूँ। एंड फिर आप अपनी कॉन्शियस को, अपनी पूरी पावर को, पूरी एनर्जी को, पूरे रिसोर्सेस को उससे अलाइन कीजिए, तो समझ में आएगा। सो थॉट इज वेरी पावरफुल। यदि आपने थॉट को पकड़ लिया कि द मोमेंट एक थॉट अराइव होता है, फिर फीलिंग उससे होती है, उससे आपका बिहेवियर होता है एंड आउटकम होता है। सो हम ऐसे बहुत सारे लूप्स में फंसे हैं जहां पे कि एक पर्टिकुलर एनर्जी हमने उस पर्टिकुलर थॉट को दी। अब 10 साल पहले कोई बात हुई है, 20 साल पहले कोई बात हुई है, अभी भी उसका थॉट आएगा तो वैसी पेन या हर्ट की फीलिंग आएंगी, वैसा ही इमोशन होगा और आप उस टाइम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो ये सब हमारी मेमोरी में, हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा ये उस टाइम पे स्टोर हुआ था तो अभी भी वैसे आता है, तो हमें उसको नया मीनिंग क्या देना है। आप किसी भी फिलॉसफी से आइए, कार्मिक से आइए, तो हो सकता है कि भाई मेरा उस टाइम पे कर्मा था या उस टाइम ऐसा था, तो आप वैसे उसको सेटल कर सकते हैं। या आपको कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को फॉरगिव करना है, दूसरों को फॉरगिव करना है, तो वैसा कर सकते हैं। बट जो भी पेनफुल एरियाज हैं, उस पूरे एक्सपीरियंस को रिलीव करके अपने लिए सेटल करना है, सो दैट इट्स नॉट कीप कमिंग बैक इन योर लाइफ and it's creating the same kind of circumstances and same kind of event, and we are creating more of what we experience so far if we are in same thoughts, feelings, mood, emotions. So हमारे थॉट्स क्या हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारी फीलिंग हो जाती है और एक्शन हो जाते हैं, और फिर जैसे इमोशंस आते हैं वो दोबारा से उसी तरह के मोर थॉट्स को, डूइंग को अट्रैक्ट करता है, एंड जैसा हम करते हैं उसी तरह से हमारी थिंकिंग एंड फीलिंग। सो इट्स अ विशियस साइकिल, इट्स अ लूप। हम इसी लूप में सबके सब स्टक रहते हैं। सो मोर दोस काइंड ऑफ फीलिंग्स, दोस काइंड ऑफ थॉट्स, गिविंग दोस काइंड ऑफ इमोशंस एंड actions and behavior, and the same loop is getting created. If we want to create something else, we need to create different thought, because every thought, whatever you are thinking, is being transformed as a picture. तो हमारा माइंड तो पिक्चर की शेप में देखता है। तो अभी मैं आपको यदि बोलूं कि एक बहुत ही जो है एग्जॉटिक प्लेस पे आपको ले जाया गया है और आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं। उषा जी, प्रीतम जी, आपके फेवरेट फ्रूट्स क्या हैं, बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। I take non-spicy food. No, food is, I'm talking about fruits. Food, I mean, well, vegetables, Okay. fruit, Can you name any, or like in this season, mangoes, my favorite. ग्रेट। सो मैंगो रखे हुए हैं आपके पास, जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी वैरायटी के मैंगो होते हैं वो रखा हुआ है, और उसकी आइसक्रीम भी रखी हुई है। प्रीतम जी, आपको क्या पसंद है? मुझे भी मैंगो पसंद है। ओके, सो वाओ, मैंगो। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है चेरी पसंद हो, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद हो, किसी को पाइनएप्पल पसंद हो, है ना? सो ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स, ऑल काइंड ऑफ आइसक्रीम, द whatever you feel like, if you are offered with all those kind of food, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, whatever, like,
सो आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो अभी भी मैं कोई बोलूंगी तो मैंगो बोला तो मैंगो का पिक्चर आपके दिमाग में आ गया है ना। ऐसे ही हम किसी इंसान को पिक्चराइज करते हैं, जो भी हम वर्ड या एनर्जी दे रहे हैं वो यूनिवर्स में पिक्चर की तरह जा रही है, हमारे ब्रेन में पिक्चर की तरह जा रही है। आप देख रहे हैं कि ब्रेन का मैंने कनेक्शन दिखाया और यहाँ पे एक मेल फीमेल है, तो सब कुछ उनकी हेड में ही है, सब कुछ उनके पिक्चराइजेशन में ही है, एंड दे आर क्रिएटिंग दैट। तो जितनी ज्यादा पिक्चर स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा हमारे दिमाग में शकनी मामा जैसी पिक्चर स्ट्रांग है किसी के लिए या फिर केकई जैसी पिक्चर स्टोर है किसी के लिए, तो वो इंसान अच्छा भी कर ले लेकिन वो हमें वैसा ही अकर करेगा, वैसा ही दिखाई देगा, है ना। और यदि हमारे दिमाग में किसी की भगवान राम की पिक्चर है या फिर एक जो है कौन से सुदामा जी की पिक्चर है किसी दोस्त के बारे में, तो वो इंसान से थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो हम माफ कर देंगे, है ना। So everything is in our creation and we are creating, and everybody knows कि thoughts become things. तो जो आप सोचते हैं जिस पे आपकी एनर्जी फोकस रहती है, तो लोग तो आजकल विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन के थ्रू सब कितने लोगों ने अट्रैक्ट किया है। और जब आप ऐसा फील करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस में रहते हैं, सो यू अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। So the most important is what you are feeling, what kind of energy you are in, what kind of space you are in, है ना। और यदि रियलिटी में कुछ और भी चल रहे हैं, so are you able to shift your energy in your meditation? Usha ji, kindly mute. Okay, I'm doing it. So thoughts become things. Yeah. कई बार देखा होगा कि आपने वैसी ड्रेस या वैसी ज्वेलरी सोची थी और वैसा जो है आपने अट्रैक्ट कर लिया, किसी ने आपको गिफ्ट में लाके दे दिया, राइट। होता है लोगों के साथ। या आप सोच ही रहे थे कि मेरे को ऐसी आइसक्रीम खाने को मिल जाए, पता चला कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर पे, वही आइसक्रीम लेके आ गया। मेरे साथ तो बहुत बार होता है मैम। वाओ, ग्रेट। सो यू आर अ गुड मैनिफेस्टर देन। सो सेम कलर, सेम ड्रेस और सब कुछ सेम, कुछ भी फर्क नहीं। वाओ। एक बार मैं मेरी बेटी की बेटी हुई थी, मेरी बेटी को तो मैं शॉप में गई, मैंने एक ड्रेस पसंद की लेकिन वो मेरे बजट से बाहर थी तो मैं नहीं ली। लेकिन वो दिमाग में इतनी घुस गई कि वो मुझे लग रहा था जैसे उसने पहन रखी है। और जब 1 महीने के बाद मैं उसके घर गई मेरी बेटी के, तो वही सेम ड्रेस, सेम ब्रांड, सेम कलर उसकी जेठानी ने लाके मेरी बेटी को गिफ्ट किया। Wow. So Santosh ji, what a manifester you are. So you can see the live example here on call. So great. Clapping Santosh ji के लिए। Santosh ji is such a powerful manifester. Yeah. So I mean we can see कि अब thoughts जो है it's so powerful। यदि आपके thoughts किसी भी आप काम को करने जा रहे हैं और आपका अंदर से थॉट है कि मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगी, है ना, और मैं तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मैंने पूरी तैयारी की है, उसके लिए जो एक्शन लेने वो आपने किए हैं, बट आपका माइंड डाउट में है, फियर में है, या फिर सक्सेस वाली एनर्जी में या फेलियर वाली एनर्जी में है। सो कौन सी एनर्जी को आप थॉट्स दे रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी सक्सेस कितनी होगी उस चीज की, राइट। अब होता क्या है, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि यदि आप जोक्स की बात करने लगे तो छोटे स्कूल के जोक से लेके सभी जोक्स याद आने लग जाएंगे आपको, है ना। अभी अंताक्षरी खेलने लगे तो कईयों ने गाने नहीं सुने होंगे, बट उनको सब गाने याद, पुराने जमाने के, नए जमाने, मतलब कहाँ से, मतलब एक एनर्जी देने की बात है वहां पे, फोकस अटेंशन देने की बात, और सब कुछ आपको याद आने लग जाता है। तो ऐसे ही यदि आप सक्सेस का सोचने लगेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि भाई मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैंने इतने बार इतने एग्जाम्स दिए हैं, इतनी बार इतनी हर्डल्स पास की, इतनी बार इतनी टफ सिचुएशन मैंने फेस की है। सो आई वाज ना, कोई और तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों पे नहीं जाता है कि वी आर सो सक्सेसफुल ऑलरेडी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इन सो मेनी एरियाज वी आर सो सक्सेसफुल, और हमारी एनर्जी तो, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो ये तो छोटी मोटी बात है। अभी कोई फियर आ भी रहा होगा, लेकिन हम उस फियर को एनर्जी दे रहे हैं या फेलियर को एनर्जी दे रहे हैं या सक्सेस वाले थॉट्स को। तो डेफिनेटली यदि थॉट इज अबाउट सक्सेस तो पिक्चर भी आपके माइंड में सक्सेस की बनती है, और आपके मूड, थॉट, फीलिंग, एक्शंस, बिहेवियर सब वैसे हो जाते हैं। और यदि डाउट किए, फियर किए, फेलियर किए, तो आपका माइंड, सो चॉइस हमेशा हमारी होती है, क्योंकि आप एक थॉट को एनर्जी देंगे, वैसे हजारों थॉट्स आपकी सामने प्लेट में लाके आपको वैसा शो अप करेंगे। और यदि आप उस
उस टाइम पे किस थॉट को एनर्जी दे रहे हैं, तो आपकी वो बिजनेस मीटिंग या डील या जो भी आप खरीदने वाले हैं तो वैसा वाला हो जाएगा, है ना। सो हमारी चॉइस है कि व्हाट वी आर चूजिंग इन द मोमेंट एंड व्हाट वी आर क्रिएटिंग। सो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड मिरर की तरह काम करता है, हमेशा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप बिलीव करते हैं, जो आप कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या सो ऐसा नहीं है कि आप एक मिरर की तरह अपने आप को, मतलब आपके चारों तरफ मिरर लगे हैं, तो हर जगह जो अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, जो हेल्पफुल हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी है ना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपको बहुत इरिटेट करते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी हाथ उसमें है कि आपका परसेप्शन उनके बारे में ऐसा है, वो दूसरों को इरिटेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वहां पे हम भी उस एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। maybe we are not able to forgive or we are not able to create a different kind of relationship, या हम वो इतना ही परेशान कर रहे हैं तो हमने उनसे डिस्टेंस नहीं बनाया है, right? So all kind of things, whatever is happening in my life, I am in the center and the whole world is reflecting like that. So we need to take that kind of responsibility कि I am in charge, I am in control. So one is very clear about thoughts and emotions. कोई ऐसा तो नहीं है कि इस बारे में कोई डाउट है किसी को? Then we take another section. It's transcending your ego. Transcending your ego and surrender to divine flow. अब होता क्या है, कई बार हमारी बहुत एफर्ट लगती है और हम क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वैसी चीजें नहीं हो रही होती और हम हेल बेंट होते हैं, भाई नहीं है तो। अब कई लोग होते हैं आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में होता है बनना, अब बहुत सारे उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है, कई बार हमें डिवाइन फ्लो, हम अपनी पूरी एफर्ट डाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, थॉट्स डाल रहे हैं, तो हमें दूसरे भी ऑप्शंस देखने चाहिए। मे बी देयर इज सम सिग्नल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम डिवाइन। तो लोगों को कई बार बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो एकेडमिक ईगो हो जाता है, या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बहुत होते हैं तो उन्हें स्पिरिचुअल ईगो हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है, राइट। ऐसे ही ऑटो पायलट क्या है, ईगो ऑटो पायलट में जो भी आपके अभी तक परसेप्शन, थॉट्स, बिलीफ, आपकी थिंकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, जो भी वो ऑटो पायलट है, चल रहा है। जितने भी आप थॉट्स देखिए ना, तो वो बेसिकली आप तो पूरी तरह से ब्रह्म में, अहम ब्रह्मास्मि, या यू आर दैट पावरफुल, बट जैसे थॉट्स आते हैं और जिनको हम एनर्जी दे रहे हैं और वो ऑटो पायलट में चल रहे हैं, और वो आपकी सारी की सारी लाइफ, आपके एक्शंस, आपकी चीजें ड्राइव कर रहे हैं। और हमेशा ये सेपरेशन का वो देता है कि दिस इज मी एंड दिस इज यू, जो हमें शास्त्रों में बताया जाता है, या जो हमारा कई बार मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होता है, वी फील वननेस। सो आर वी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, और देयर इज ऑलवेज सेपरेशन? मुझे लगेगा मैं कुछ और हूँ और सामने वाला कुछ और है, मेरे को तो इससे अपना बचाव करना है, राइट? मेरे को हर्ट ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, ये मुझे मेरा फायदा ना उठा ले, या ये इसका क्या एजेंडा है। आई मीन दोज काइंड ऑफ थिंग्स आपके दिमाग में ज्यादा पॉप अप करती हैं, बिकॉज वी लिव इन सेपरेशन। एंड ये आई एम तो बहुत स्ट्रांग है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या हूँ आपको। जैसे कि आई एम अच्छी बात है, अपनी एक जो है बैलेंस में यदि आप अपनी ईगो को रखते हैं, सो दे से इट्स अ सुपर ईगो एंड ईगो, है ना। तो आपका एक बैलेंस वे में कि आपकी एक आइडेंटिटी है, आप ये इंसान हो, और वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए वो जरूरी है कि मेरा नाम पूजा है या शबाना है या उषा जी है या जो भी आपका नाम है, क्योंकि ऐसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया है या फिर अमेरिका है तो बाउंड्रीज बना दी, या जो भी कुछ भी है हमें जैसे कन्वीनियंस के लिए बनाया था, ऐसे किसी को कैसे बुलाते। लेकिन अब पता चला कि मैं उस आई को लेके इतना परेशान हूँ कि कैसी हिम्मत हो गई किसी की मुझे ऐसे देखने की, मुझे ऐसे बोलने की, या आई एम मतलब सो एंड सो। कुछ लोगों का ईगो एसोसिएटेड होता है अपनी पोजीशन से कि मैं तो सीईओ हूँ कंपनी का, तो पूरी दुनिया को, मेरे बच्चों को ना मेरी बात सुननी चाहिए, यदि उन्होंने नहीं सुना मेरी मर्जी के खिलाफ जब चीजें होती हैं घर में तो आई एम हैप्पी, यदि मैंने जैसा सोचा वैसे नहीं हुआ तो आई एम सैड, है ना। तो हमें चेक करना है कि एक बैलेंस में यदि हमारी वो ईगो है तो विच इज फाइन, और आई एम माई स्टोरी, हम जो स्टोरीज होती हैं वो लेके घूम रहे होते हैं अपने कंधों पे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो वो आपको पास्ट में ही रखती हैं, कुछ नया नहीं क्रिएट करने देती। या फिर जो स्टोरी फ्यूचर में भी आपने मतलब बना ली है पास्ट के बेसिस पे, या अपने जो भी आपने सुना है, समझा है सोसाइटी से, एनवायरनमेंट में,
राइट? तो ये जितनी सारी चीजें हैं वो हमें हैम्पर कर रही हैं। अब जैसे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जोक्स हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इन्हें? उदय जी आप पढ़ेंगे? यस। यस, पढ़ रहे हैं। अच्छा, बोल के हाँ जी, हाँ जी। यू आर लिसनिंग टू इंटरनल मोनोलॉग विद मी सबकॉन्शियस, डीजे सबकॉन्शियस, ठीक है? ओके। प्लेइंग ऑल योर थॉट्स नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड। 24 hours a day. या ठीक है। सो थैंक्स उदय जी, आपने अच्छा क्रिएट किया। सो मतलब ये मिस्टर सबकॉन्शियस है, डीजे सबकॉन्शियस है, इसमें चल रहा है, मोनोलॉग चल रहा है, आपके अपने हेड में चल रहा होता है। इवन इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आपके हेड में अभी भी मोनोलॉग चल रहा है, आपने मुंह से नहीं बोला कुछ भी, लेकिन मेरे बारे में भी अभी ओपिनियन, परसेप्शन, इसको ऐसा बोलती तो ऐसा होता है, मे बी थॉट्स चल रहे हो सकते हैं, राइट? सो नॉन स्टॉप चल रहा है, 24/7 वो डीजे चल रहा है आपके माइंड में ना। And from classic, like, why did I say that? And the golden oldies, like, I am a horrible person, है ना? I'm afraid, I should not do this, है ना? अंग्रेज लोगों के सामने ज्यादा होता है कि एवरी चीज में वो अफ्रेड होते हैं, भाई इतने अफ्रेड है तो वो काम ही मत करो। आई एम अफ्रेड आई स्लैप्ड यू। मतलब कि थप्पड़ भी मारे और सॉरी है आप उसके लिए, तो वैसा काम मत कीजिए, ठीक है? So yeah, to today's hottest hits, what the hell I am doing with my life, and I'm hungry or I'm bored, है ना? तो पता ही नहीं होता है, इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, इतना सारा मोनोलॉग चल रहा होता है, और हम लोगों को तो नहीं बोलते हैं। यदि हम सच में वो सब बोलने लग जाएं तो हमारे कितने रिश्ते हमारे साथ बचेंगे वो हमें भी नहीं आइडिया है। यू कैन इमेजिन कि जो थॉट्स आता है यदि हमने वैसे का वैसा बोल दिया। तो हमें इस मोनोलॉग में जाना है या क्रिएशन में रहना है, वट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट, सो चॉइस इज अवर्स। एंड ये थोड़ा स्पिरिचुअल ईगो है। ये मैडम बोल रही हैं कि सिंस आई हैव हैड माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, I could finally put my ego aside and now I am so much better than all of you. मतलब इन्हें क्या है, स्पिरिचुअलिटी में भी इन्होंने जो भी किया होगा उसका अहंकार है कि नाउ आई एम सुपीरियर एंड यू गाइस आर बिलो मी, यू ऑल आर इंफीरियर। और ये जो एक मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड अब इस चीज का भी तो अहंकार है ना, आई एम सो फ्रीकिंग एनलाइटेंड। एनलाइटनमेंट का भी अहंकार है कि भाई तुम्हारे तो वो जो ना होलो लग गया तुम्हारे चारों तरफ और तुम कुछ सुपर ह्यूमन बीइंग बन गए हो, एंड यू आर नाउ नॉट टॉकिंग टू अदर पीपल। तो बल्कि कुछ भी आप करते हैं तो आपको और हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, और ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। सो वी नीड टू चेक कि हमें ज्ञान का तो अहंकार नहीं हो रहा है, हमें स्पिरिचुअलिटी का तो अहंकार नहीं हो रहा है, हमें ज्यादा नॉलेजेबल होने का तो अहंकार नहीं हो रहा है, राइट? So these things also come in the way of our creation, and when we see, हम ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब पैसे के लेवल पे किसी इंसान को जैसा कपड़ों में देखते हैं, तो we have all the judgment and evaluation about people, yeah, and when we can relate. So I'm giving you one example. मेरे एक डॉक्टर अंकल थे और उनका पोस्टिंग कहीं पे हुआ, तो सब स्टाफ के मेंबर्स ने बताया कि इस बंदे से बच के रहना, ही इज अ बिग टाइम चीटर एंड ही यूजेस पीपल, है ना? पैसा वैसा भी मांग लेता है और कोई काम नहीं करता है किसी का। तो स्टाफ में एक मेंबर ऐसा था, थोड़ा सा लो पोस्ट पे होगा उनसे, एंड दिस पर्सन वाज इन अ वो कि भाई अब भगवान तो जो है वो खंबे में से निकल के आ गए, नरसिंह अवतार ले लिया है ना वो करने के लिए। अब भगवान तो कण कण में है, अब इसमें भी भगवान बैठा है। ही वाज बाइंग दैट फिलॉसफी। अब ठीक है वो दूसरों के लिए कैसा भी हो, बट व्हाई शुड आई मेक अ जजमेंट अबाउट हिम? लेट मी बी विद हिम, विल सी। और उन्होंने उनको हमेशा वहां से रिलेट किया कि ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, या एंड ही इज ऑल्सो डिवाइन, मतलब उनके है, और मैं वहां से रिलेशन बनाता हूँ। तो ही बिकेम द बेस्ट बडी फॉर हिम, और वो उनका सबसे ज्यादा भाग भाग के काम करता था, उनको सारा कुछ केयर करता था, उनके लिए एनी टाइम एज ए दोस्त खड़ा रहता था। वही इंसान जो सबके साथ चीटिंग कर रहा है सबके साथ। तो आप कैसा रिलेशन बना रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो इंसान कैसा है? उसको किसी ने प्यार ही नहीं दिया, किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं दी, किसी ने उस चीज से देखा ही नहीं। एक बार उससे गलती होगी तो उसको सब वैसा देखने लगे,
है ना? तो इट्स अगेन योर क्रिएशन, आप कैसा क्रिएट करेंगे वैसा रिलेशनशिप आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली कण कण में भगवान है, तो आपके घर की दीवारों में भी भगवान है। जब कोई भी नहीं होता तो भी आप जो सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, आपके सारे पार्टिकल्स आपके घर के वैसे हो जाएंगे यदि आप हमेशा कंप्लेन, ब्लेम या गॉसिपिंग या नेगेटिविटी उस तरह से करेंगे। अब आप घर में अच्छी वाइब्स करेंगे तो आप अच्छी बातें करेंगे, हंसता खेलता एटमॉस्फेयर रखेंगे, कुछ अच्छी कैंड्स या म्यूजिक लगाएंगे, तो वैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है कि हम हमेशा आउटकम से अटैच रहते हैं बहुत। तो ईगो क्या होता है, प्रोसेस में बिलीव नहीं करती, ग्रोथ में। तो कई बार हमने जो चीज गोल सेट किया या जो अपने लिए सोचा, यदि वो नहीं हुआ तो वी बिकम सो डिसहार्टेड। So we need to let go of attachment to outcome. We need to just invest in the process. और जो result होगा, at times results पे हमारा, वो तो गीता में भी बोला है कि हमारा कर्म पे अधिकार है और हमारा result पे अधिकार नहीं है. So if you have done your 100%, so that itself is a blessing, and that gives you fulfillment कि I did my 100%. If this is not working, so I can change my track or path for it. So you should not be strict about it. कई लोग होते हैं ना, वो पूरी जिंदगी उसमें निकाल देते हैं कि यदि एक रास्ते से उनका नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता वो चूज ही नहीं करेंगे या वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो वी नीड टू सी, आई मीन कि थोड़ा सा रैशनली देखना होगा चीजों को, एंड द ट्रस्टिंग इन द विजडम ऑफ यूनिवर्स। तो आप यदि यूनिवर्स के विजडम में ट्रस्ट करते हैं, दैट डिवाइन इज ऑल्सो विद यू, डिवाइन इज ऑल्सो, तो आप ये समझिए कि दैट डिवाइन, जिसको भी आप मानते हैं, शिवा को मानते हैं, राम को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, या कोई यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं, तो वो कहीं बाहर नहीं है कि हमें मंदिरों में जाके मिलेगी या कहीं चर्च में जाके या मस्जिद में जाके मिलेगी या किसी प्लेस पे जाके मिलेगी। वो तो आप मान के चलिए कि वो दोस्त के साथ ना आप ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलिए हमेशा। आप डिवाइन को ऐसा बनाइए कि वो आपके साथ एवरी सेकेंड एवरी मिनट चल रहा है। ये बात करने के लिए नहीं है। उस तरह से यदि आप डिवाइन के साथ वॉक करेंगे, टॉक करेंगे, और यदि आपकी प्रेजेंस में वो रहे कि वो जो जिसको भी आप सुबह सुबह आरती दिखाते हैं और पूजा करते हैं, वो अभी भी आपके साथ है, भाई खड़ा है, आपके साथ बैठा है, आपके साथ सो रहा है, आपके साथ सुन रहा है। ही इज योर बेस्ट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और वाइफ और हस्बैंड बिफोर देन योर वाइफ, है ना? तो वो देख रहा है उस टाइम आप कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा एक्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी यदि हम उस प्रेजेंस को इतना रखेंगे। एंड सरेंडरिंग टू द फ्लो ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो जो भी आप अपना शांत मन से, जो अंदर से इंट्यूशन आती है, जो डिवाइन गाइडेंस आती है, ये नहीं कि मैं बस अपना ही दिमाग लगा रही हूँ एंड आई एम नॉट लिसनिंग टू माई हार्ट, आई एम नॉट लिसनिंग टू माई इंट्यूशन, आई एम इग्नोरिंग माई इनर वॉइस, सो दैट इज नॉट। सो हमें करना क्या है? वी नीड टू सरेंडर, we need to let go of attachment to outcomes, and like a surfers कैसे होते हैं या रिवर कैसे होती है कि फ्लो करती है ना? तो ऐसे ही सर्फिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो फ्लो के साथ बहते हैं और तभी वो विनर होते हैं, तभी वो। तो हमें भी लाइफ की जो रिवर है उसके फ्लो के साथ रहना है, एंड वी शुड एंजॉय अवर लर्निंग एंड ग्रोथ एंड लेसन, एंड सब कुछ करने के बाद वी नीड टू सरेंडर। सो that's the thing. So choice is ours, and basically हम चूज क्या करते हैं एवरी मोमेंट में, कैसा थॉट, कैसी इमोशन, कैसा फीलिंग, कैसा बिलीफ, कैसा बिहेवियर, आवर थॉट्स इज टुवर्ड्स वो, या हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या डिवाइन से ऑपरेट कर रहे हैं। जब हम किसी को हाय हेलो कर रहे हैं तो हम वाकई उसके अंदर की डिविनिटी को नमस्ते कर रहे हैं, वहां से कनेक्ट कर रहे हैं, सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, या उसके ट्रेट से कनेक्ट कर रहे हैं। So that will shift our entire connection with those people, and या फिर जो हमारा लोगों की भलाई के लिए हमने कोई भी काम लिया है, तो हम उसके उसमें प्यार में खड़े हो कि आप किसी को डांट भी रहे हैं, प्यार में खड़े हो कि उस डिवाइन एनर्जी में खड़े हो कि जो भी एक्शन लेने हैं, यदि आपको ऊंचा भी बोलना है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, बट यू आर स्टैंडिंग इन दैट डिविनिटी, यू आर स्टैंडिंग इन दैट डिवाइन लव, और यू आर स्टैंडिंग इन हेट्रेड और जजमेंट और इवैल्यूएशन। सो चॉइस हमारी है कि हम हर मोमेंट में किस चीज को एनर्जी दे रहे हैं। And that which comes and goes, rise and sets, born and dies is the ego, and that which always abides, never changes, and the devoid of quality is the self. So जो कभी भी चेंज नहीं होता है। अभी बचपन से आपको सब याद है कि आप नन्हे मुन्ने से कैसे थे, आप बड़े हो गए तो कैसे हो गए। अभी आपको अपनी उन बेवकूफियों पे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में की थी, 12th में की थी,
है ना, ग्रेजुएशन में की थी, अब बोलते हैं यार क्या फालतू में दिमाग खराब किया। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और भी ज्यादा हंसी आती है अपनी चीजों पे, राइट। सो हमें हमेशा सेल्फ में रहना है ना, आत्मा में स्थित होना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सो आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होगी, एंड यू आर एक्चुअली दिस, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ विराटा। वो भगवान कृष्ण जो है बोल बोल के कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो मुझ में हो रहा है और सब मैं ही हूं, तो आप भी उनके रूप हैं, आप भी उनके अंश हैं। So choice is yours कि you can relate to yourself small, separate, alone, afraid, I'm good for nothing, I'm this, I'm that, I'm stupid. You can relate from there, or you can relate from that I'm so powerful. I have all the powers of divine. So कहाँ आपको एनर्जी देनी है? This choice is yours, and you are the universe, and you are always creating. You are that Brahman. So thank you so much for being here. I am complete for the day, and if you have any question, any query, you can ask. And today's quote is, be mindful of your self-talk. It is the conversation with the universe. You are creating every moment. Yeah. So anybody have any questions? You are most welcome.